Good morning, students. Myself, Radheshyam sir, your SST subject teacher, and most welcome here in my online class today. So, dear student, today I am going to start the next motion of the earth, revolution. Revolution, it is the, see this figure, see carefully. Many times I explained this chapter, entire the class also, and the re-explanation of this chapter is going on continue. Yesterday I explained the only first part of the rotation, first part of the motion of the earth, that was rotation, and yesterday I sent the classwork also and video also. I hope that some students, they listened the video carefully and they followed me and they have done the question answers very short, 3 or 4 question answer from that paragraph which I explained yesterday. Now dear children, today I am going to start the next second motion of the earth. So today I will tell you about the second motion of the earth. What is the name of the second motion of the earth and what happened when the earth moved on the way of the second motion. Overall you will understand about this in this video. See this one here, this paragraph is, and it is the figure of the second. See this paragraph and this one figure of given here. So I am going to explain, listen carefully. The second motion of the earth round the sun in its orbit is called the revolution. See this, when the earth, it is the sun, and when earth moves on its around the sun, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने फिक्स रास्ते पर, पाथ पर, जिसे दैट पाथ विच पाथ अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दैट पाथ ऑफ अर्थ, द वे ऑफ द अर्थ is called orbit. And this motion, when the earth revolves around the sun, this motion, this movement of the earth is called revolution, is called revolution. बच्चों ध्यान से समझें, revolution means क्रांति भी होता है in history. Revolution means the क्रांति, movement, आंदोलन. Here you will understand the motion of the earth when the earth moves around the sun. This types of movement of the earth is called revolution, right? Now what happened and how many days and how much time earth takes make the complete one round around the sun. एक चक्कर लगाने में पृथ्वी, सूरज का जब एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है, इसके बारे में भी मैं जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस. सी दिस, इट टेक्स 365 होल 1/4 days. बच्चों जो पृथ्वी है, जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 यानी 365 days and 6 hours लेती है.
It means 365 days and 6 hour makes a particular one year. जो 365 डेज हैं ये मिलकर एक साल का निर्माण करते हैं। यानी एक साल में, एक ईयर में 365 दिन यानी 365 डेज और 6 आवर होते हैं। To revolves around the sun, we consider a year is consisting of 365 days. अब आप समझ गए होंगे, जैसा कि अभी जस्ट आई सेड टू यू कि देयर आर 365 डेज, अर्थ टेक्स कंप्लीट मेक द वन राउंड अराउंड द अर्थ। तो इट मीन्स दैट द अर्थ, द 1 year is made by 365 days. Only that ignore 6 hours. हम ये 6 घंटों को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन नेचर हमारा पृथ्वी ये कंटिन्यू इनको लगातार 6 आवर को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। It takes the convenience and 6 hours saved every year are added to make 1 day. 6 hours saved every year. हर एक साल इन 6 घंटों को अलग निकालकर इनको ऐड किया जाता है, added to make 1 day। और ये जब एडेड हो जाते हैं, जब ये 24 आवर हो जाता है, 24 आवर मिलकर बन जाता है एक दिन। ओवर ऑफ स्पॉन ऑफ द 4 years, पूरे के पूरे 4 सालों में जाकर एक दिन का निर्माण हो जाता है, यानी 24 आवर्स हो जाते हैं। दिस सरप्लस डेज इज एडेड टू मंथ ऑफ फरवरी। और ये इस दिन को, ये घंटों का जो एडिंग मेक अ 1 डे, दिस डे एड इन द फरवरी, क्योंकि फरवरी एक ऐसा मंथ है दिस इज वेरी लेस डेज, इसी में कम दिन होते हैं। दैट इज वाई दिस 1 डे इंक्रीज इन फरवरी मंथ। Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. 28 दिन के, इसलिए जो 28 दिन के जगह पर हर 4 साल के बाद, यानी every 4 year, पृथ्वी जो है बच्चों 29, वो फरवरी 29 डेज की होती है। यानी हर एक 4 साल के बाद फरवरी का जो महीना होता है वो 29 डेज का हो जाता है। सच अ ईयर विद 366 डेज, और उस साल जो जब फरवरी 29 डेज की होती है, दैट ईयर कंप्लीट डेज 366 डेज। सो दैट इज वाई दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। अब आप समझ गए होंगे कि इसको लीप ईयर किसे कहते हैं, या लीप ईयर क्यों कहा जाता है, और लीप ईयर में कितने ईयर डेज होते हैं, और फरवरी उस साल उस ईयर में कितने दिनों की होती है। तो लीप ईयर जिस वर्ष ये 6 घंटे मैंने आपको बताया कि 6 आवर को ऐड करके हर 4 साल के बाद क्यों लीप ईयर आता है, क्योंकि हर 4 साल में, हर एक साल में 6 आवर को ऐड करके ये 24 घंटे चौथे साल यानी 4th ईयर में ये एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो दिन फरवरी में जोड़ दिया जाता है। इसलिए वो 4th ईयर जो है 366 डेज का होता है, इसलिए इसको लीप ईयर कहा जाता है। यानी जो वर्ष 366 डेज का होगा उसको लीप ईयर में रखा जाएगा। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर, अगला लीप ईयर आपको
बताना होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 it is the clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit। इसलिए ये पृथ्वी जो है वो अब ये देख रहे हैं आप, see this figure, see carefully this orbit path of the earth where earth moves around the sun। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जो शेप है, आप जो एक शेप देख रहे हैं, ये शेप कैसा शेप है? लाइक ए ओवल शेप, लगता है एक अंडे की तरह आकार बन रहा है। तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक जो उनका रास्ता बनता है वो एक अंडे की आकार में सूरज के चारों ओर घूमती है। और ये जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का जो शेप है, जो पाथ है, वो एलिप्टिकल शेप में है। इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट या ओवल शेप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट दैट अर्थ इज inclined in the same direction। ठीक है, थ्रू आउट द ऑर्बिट, देखिए पृथ्वी जब भी जहां भी होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। देखिए जब ये 20 मार्च को, इधर से मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, अब 20 मार्च देखिए पृथ्वी का जो हिस्सा है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, एनपी और एसपी। एनपी मीन्स होता है नॉर्थ पोल और एसपी मीन्स होता है साउथ पोल। विच लाइन टच नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इट इज कॉल्ड द एक्सिस। यस्टरडे आई एक्सप्लेन दिस ओनली सिंगल रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ में आई एक्सप्लेन दिस, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में बताया। इक्विनोक्स क्या होता है, मतलब उस दिन जो दिन और रात यहां पर ये स्प्रिंग सीजन यानी मार्च के 21 को यानी 21 को इक्विनोक्स होता है। अर्थ इक्विनोक्स पर होती है। इस दिन डे और नाइट इक्वल होते हैं। तो मार्च के 21 मार्च को और इधर 23 सितंबर को, अभी जो अगस्त के बाद सितंबर मंथ आएगा, तो ये 23 सितंबर को इक्विनोक्स डे होगा। केवल इस दिन पृथ्वी का बैलेंस इक्वल होता है और उस दिन डे और नाइट इक्वल होते हैं। इधर जब सूर्य उत्तरायण में होता है, और उत्तरायण से एक और बात है, फिर ये क्या करता है कि 21 मार्च से ये सदर्न एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और इसमें स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होती है। उस दिन 21 मार्च को इक्विनोक्स होता है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद एटोमन सीजन जो होती है उस दिन इक्विनोक्स होता है, यानी इक्वल होता है डे और नाइट। इधर जाकर एटोमन सीजन में ये 23 को 23 ऑफ सितंबर डे एंड नाइट विल बी इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सी दिस, व्हेन द विंटर सोलिस्टिक एंड समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक। ये समर सोलिस्टिक 21 दिसंबर एंड विंटर सोलिस्टिक 21 जून, ये समर सोलिस्टिक। इन दिस वे द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो समर सोलिस्टिक में 21 जून के बाद जो सूर्य होता है वो उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर
यानी सदर्न से नॉर्दर्न की ओर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये विंटर में नॉर्दर्न टू सदर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, और विंटर में स्टार्ट होता है 22 दिसंबर से। ये धीरे धीरे जो होगा वो बिल्कुल पोजीशन सेंटर पर होता है, और 22 दिसंबर के बाद फिर ये अपनी स्थिति से नॉर्दर्न साइड यानी 22 दिसंबर जनवरी फरवरी ये फिर नॉर्दर्न की साइड से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो टुडे you will draw this figure in your notebook and you will do the practice, and from this paragraphs, only this single paragraphs, you will find out 5 very short question answer, one word question answers, and those questions answers you will write in your SST notebook. Thank you dear student, best of your luck.